بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ نگران پنجاب حکومت کی صوبائی بجٹ کی منظوری۔ پنجاب کے آئندہ 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ نگران حکومت کی جانب سے ترقیاتی بجٹ کا حجم 325 ارب۔ پنجاب 194 ارب روپے اپنے وسائل سے پیدا کرے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30، پینشن میں 5% اضافہ۔ تنخواہیں اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ تعلیم کے لیے 195 ارب، صحت 183 ارب، سوشل پروٹیکشن کے لیے 70 ارب روپے مختص۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 8 ارب 80 کروڑ روپے کیے جائیں گے۔ نگران کابینہ کی صحافیوں کے لیے 1 ارب کے انڈومنٹ فنڈ کی منظوری۔ زراعت میں ترقیاتی بجٹ 47 ارب، آبپاشی کے لیے 18 ارب روپے مختص۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ تمام ٹیکس صفر کر دیے گئے۔ صوبہ پنجاب بینکوں کو روزانہ 25 کروڑ سود ادا کر رہا تھا۔ فوری طور پر 600 ارب قرض اتارنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزراء عامر میر اور ایس ایم تنویر نے بجٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ بجٹ عوام دوست قرار دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں نگران پنجاب حکومت کی صوبائی بجٹ کی منظوری۔ پنجاب کے آئندہ 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کا بجٹ منظور۔ نگران حکومت کی جانب سے ترقیاتی بجٹ کا حجم 325 ارب۔ پنجاب 194 ارب روپے اپنے وسائل سے پیدا کرے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30، پینشن میں 5% اضافہ۔ تنخواہ اور پینشن کی مد میں 721 ارب روپے مختص کیے گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ تعلیم کے لیے 195 ارب، صحت کے لیے 183 ارب، سوشل پروٹیکشن کے لیے 70 ارب مختص۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 8 ارب 80 کروڑ مختص کیے گئے۔ صوبائی وزراء عامر میر اور ایس ایم تنویر نے بجٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ بجٹ عوام دوست قرار دیا۔ بات کر رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ پنجاب کا اگلے 4 ماہ کے لیے 1719 ارب کا بجٹ پیش۔ کپڑے کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا بجٹ پر اطمینان کا اظہار۔ کہتے ہیں وفاق نے بجٹ میں انڈسٹری کو خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا تھا۔ صدر انجمن تاجران سینیٹ حاجی محمد جمیل فخری کی جانب سے بجٹ پر تحفظات کا اظہار۔ بولے 4 ماہ بعد کے پیش ہونے والے بجٹ میں غریب کا خیال رکھا جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ پنجاب کا اگلے 4 ماہ کے لیے 1719 ارب کا بجٹ پیش۔ کپڑے کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا بجٹ پر اطمینان کا اظہار۔ کہتے ہیں وفاق نے بجٹ میں انڈسٹری کو خاطر خواہ ریلیف نہیں دیا۔ تاجروں کو ریلیف نہیں دیا تو ہم پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، تاجر کی کوئی پارٹی نہیں ہے، تاجر کو کسی پارٹی کی خاطر نہ زد میں لایا جائے، کیونکہ کسی قسم کا ریلیف نہیں ہے۔ مہنگائی اتنی ہے، کاروباروں میں بے روزگاری ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے بجٹ پیش کرنا ان کو پتہ ہے تاجروں کو کہاں سے ریلیف دینا ہے، تو یہ ریلیف دیں تاجروں کو، جو مزدور طبقہ ہے اس کو۔ اور یہ بھی اچھی کاوش ہے کہ جو سرکاری ملازمین کو 30% اور 35% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، چونکہ یقیناً بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ لیکن اس میں واضح کرتا چلوں، تاجروں کے لیے، چھوٹے دکانداروں کے لیے، مجبور لوگوں کے لیے اور وہ جو حقیقی ضرورت مند ہے ان کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے کا بجٹ ہے، یہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے۔ اس میں اگر وہ بہت سارا ریلیف نہیں بھی دے رہے تو کیا کرے گا آدمی۔ خاص طور پہ میں آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آج جس پہ ہم کھڑے ہیں، پاکستان، پنجاب کے لوگ اور متوسط طبقے کے لوگ، وائٹ کالر مین، انتہائی تذبذب کے شکار ہیں، پریشان ہیں، خوش نہیں ہیں، ان کے گزر اوقات نہیں چل رہے۔ تو اس لیے بجائے یہ سبسڈیاں اور ساری چیزیں، وہ پالیسی بنائی جائے جس پہ سفید پوش آدمی جن کی پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو ایکسائز سے ٹیکس شیئر مل گئے۔ پنجاب حکومت کی منظوری کے بعد گرانٹ جاری کر دی گئی۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن کو 6 کروڑ 59 لاکھ، چک جھمرا کو 3 لاکھ 65 ہزار اور جڑا والا کو 34 لاکھ روپے ملے۔ سمندری کو 30 لاکھ، تانیا والا کو 8 لاکھ 73 ہزار اور کھڑیاں والا کو 3 لاکھ کا فنڈ ملا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ بات کریں یہاں پر ڈیولپمنٹ اسکیموں کے حوالے سے تو پی ایف سی شیئر جو ہے وہ بلدیات کو مل چکے ہیں اور اس سلسلے میں میونسپل کارپوریشن کو 6 کروڑ 59 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 میونسپل کمیٹیوں کو بھی جو ان کے شیئرز بنتے تھے دیے گئے۔ واضح رہے کہ یہاں پر ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں گھروں سے اور اس کے علاوہ جو ہاؤسنگ کے حوالے سے جو ٹیکس لگاتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ پیسے جو ہے وہ اپنے اخراجات رکھ کر جو 80% شیئر ہے وہ بلدیات کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایم سی ایف کو جو ہے وہ تقریباً
उनकी जो पेमेंट बनती थी तनख्वाहों के हवाले से और दूसरे अखराजात डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से वो जारी कर दिए गए। इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटियों को भी कर दिए गए और इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की यूटिलिटीज़ हैं वहाँ पर जो रेंटेड आउट बिल्डिंग है उनके रेंट दिए जा सके। इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स है वो पूरे किए जा सके या इंटरनेट की जो सहूलत हासिल की हुई है वो की जा सके। ये इसमें जो ज़्यादातर गैर तरक्याती अखराजात होते हैं ताहम यूटिलिटीज़ को अपने पैसे कुछ महीनों के इकट्ठे करके थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करवा सकते हैं या पैच वर्क का काम करवा सकते हैं। ताहम जो अभी की जो उनकी तनख्वाह थी इससे पहले वो इसी पैसे। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के एहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता वसूली का मामला। एंटी करप्शन ने कांस्टेबल मुनव्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कांस्टेबल मुनव्वर ने मोबाइल कॉल पर रकम ना देने पर कैदी पर सख्ती करने की धमकी दी थी। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद डीआईजी जेल खानाजात ने जेल कांस्टेबल मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया। आपको बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के एहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता वसूली का मामला। एंटी करप्शन ने कांस्टेबल मुनव्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कांस्टेबल मुनव्वर ने मोबाइल कॉल पर रकम न देने पर कैदी पर सख्ती करने की धमकी दी थी। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद डीआईजी जेल खानाजात ने जेल कांस्टेबल मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के एहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता वसूली का मामला। एंटी करप्शन ने कांस्टेबल मुनव्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कांस्टेबल मुनव्वर ने मोबाइल कॉल पर रकम न देने पर कैदी पर सख्ती करने की धमकी दी थी। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद डीआईजी जेल खानाजात ने जेल कांस्टेबल मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट जेल के एहलकार का कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता वसूली का मामला। कोई 10,000 तो गुंजाइश हो सकती है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹਰਾਮ ਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਭੇਜ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ 10 ਮੰਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਨਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਟ ਹੈ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ व्हाट्सएप। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के एहलकार और कैदियों के लवाहिकीन से भत्ता वसूली का मामला। एंटी करप्शन ने कांस्टेबल मुनव्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कांस्टेबल मुनव्वर ने मोबाइल कॉल पर रकम न देने पर कैदी पर सख्ती करने की धमकी दी थी। सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद डीआईजी जेल खानाजात ने जेल कांस्टेबल मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया था। आपको बता रहे हैं, कैदी के लवाहिकीन से रकम तलबी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सिटी 41 ने नशर की थी। डीआईजी जेल खानाजात ने जेल कांस्टेबल मुनव्वर को मुअत्तल कर दिया था। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का लारी अड्डा का दौरा, इमारत के जारी मरम्मती काम का जायजा लिया। अली अनान कमर ने शहरियों के लिए कायम इंतजार गाह को साफ रखने की हिदायत की। रंगो रोगन और सफाई इंतजामात पर इंचार्ज राना हबीबुल्लाह को सराहा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का लारी अड्डा का दौरा, इमारत के जारी मुरम्मती काम का जायजा लिया। अली अनान कमर ने शहरियों के लिए कायम इंतजार गाह को साफ रखने की हिदायत की। रंगो रोगन और सफाई इंतजामात पर इंचार्ज राना हबीब उल्लाह को सराहा गया। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का लारी अड्डा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने लारी अड्डा की इमारत के मरम्मती काम का जायजा लिया। अली अनान कमर की शहरियों के लिए कायम इंतजार गाह को साफ रखने की हिदायत। रंगो रोगन और सफाई पर डिप्टी कमिश्नर ने इंचार्ज राना हबीबुल्लाह को सराहा। इंतजार गाह की सफाई हर हालत में यकीनी बनाई जाए, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का लारी अड्डा का दौरा। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, आखा कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर ने लारी अड्डा फैसलाबाद का दौरा किया है और लारी अड्डा की बिल्डिंग से जारी तामीर और मुरम्मती काम जो है उसकी क्वालिटी का जायजा लिया है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि लारी अड्डा के अंदरून हाल और पब्लिक एरिया के अंदर मौजूद सफाई की सूरत हाल पर इंचार्ज लारी अड्डा राना हबीबुल्लाह को डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से नाज़रत शाबाश दी गई है, बल्कि ये हिदायत भी जारी की गई है कि दिन में 3 वक्त जो है वेटिंग एरिया की सफाई को हर हाल में यकीनी बनाया जाए, जबकि इसके साथ साथ लारी अड्डा के पार्क को जो है उसको बेहतर बनाने के हवाले से पीएचई को हिदायत जारी कर दी गई है। जबकि लारी अड्डा की बिल्डिंग पर जारी रंग और रोगन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर का ये कहना था कि तमाम तर तामीराती काम जो है वो क्वालिटी में बेहतर होने चाहिए, जबकि आने वाले 1 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर लारी अड्डा जो है वो खूबसूरत नजर आना चाहिए, ताकि दूर दराज से आए मुसाफिरों को फैसलाबाद शहर की इंटरेस्ट जो है वो खुशगवार मिल सके। जी वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पासा की जानिब से सीवरेज मसाइल हल के लिए इकदाम।
डिस्पोजल सलाहियत बढ़ाने पर काम जारी। मिल्लत चौक डिस्पोजल पर 40 फुट गहरा कुआं तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल। इससे कबल कुआं 25 फीट और 48 क्यूसेक पंपिंग का हामिल था। नया कुआं तामीर होने से कैपेसिटी को 100 क्यूसेक तक बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट कर रही हैं वकास अहमद बेग। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल जल्द हल होने की उम्मीद बन गई। वासा हुकाम ने डिस्पोजल कैपेसिटी बढ़ाने पर काम तेज कर दिया। मिल्लत चौक डिस्पोजल पर 40 फुट गहरा कुआं तैयारी के आखिरी मराहिल में है। डायरेक्टर एडमन वासा शुएब रशीद का कहना था कि मिल्लत चौक डिस्पोजल पर इससे कबल 25 फुट कुआं 48 क्यूसिक पंपिंग का हामिल है। डायरेक्टर एडमन वासा शुएब रशीद का कहना है कि मिल्लत चौक डिस्पोजल पर 25 क्यूसिक के 2 नए पंप लगाए जाएंगे। डिस्पोजल की कैपेसिटी को 100 क्यूसिक तक लेकर जाया जाएगा, जिससे शेखुपुरा रोड से मुल्हिका इलाकों के मसाइल हल होंगे। शुएब रशीद का मजीद कहना था कि मानावाला, इमदाद टाउन, मलकपुर, गाजियाबाद, गार्डन मोहल्ला के सीवरेज मसाइल भी हल हो सकेंगे। निशाताबाद, नसीराबाद, मंजूर पार्क, अब्बास पार्क का कनेक्शन नए कुएं में लगाया जाएगा, जिससे इन इलाकों में सीवरेज ओवरफ्लो होने की परेशानी का खात्मा हो सकेगा। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर में पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से पोस्ट बजट सेमिनार का इनेकाद किया गया। टैक्स बार के ओहदेदारान और चैम्बर नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने बजट के हवाले से तब्दीलियों के तजवीज़ का इजहार भी किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन यहाँ पे रहा है। सेमिनार जो एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद किया गया है फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत में, जिसमें ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया था पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से। और तमाम लोग जो इसमें शुरका मौजूद थे, ख़ास तौर पर गुफ्तगू की गई है। जो बजट वफाकी पेश किया गया है उसके ऊपर तबसरा किया गया और ख़ास तौर पर पोस्ट बजट सजेशंस भी इस सेमिनार के अंदर जो है वो सामने रखी गई हैं। हमारे साथ टैक्स कंसल्टेंट मौजूद हैं मोहम्मद अदील साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस सेमिनार के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अदील साहब, बताइएगा क्या क्या गुफ्तगू हुई है सेमिनार के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शराज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सेमिनार जो था आज का हमारा वो ऑर्गेनाइज था पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। चीफ कमिश्नर साहब आरटीओ फैसलाबाद वो भी तशरीफ़ लाए, बाकी दीगर वकला भी लोग भी तशरीफ़ थे, तशरीफ़ लाए, लाहौर से भी लोग आए। बजट को जो है वो ओवरऑल डिस्कस किया गया। उसमें क्या क्या जो है वो सेल्स टैक्स के मेजर्स लिए गए, इनकम टैक्स के क्या क्या मेजर्स लिए गए, सबको जो है वो एक ओवरव्यू सबका पेश किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी, लीगल फर्टिनिटी और सरकारी मुलाजमीन जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं उनका मौजूद होकर एक जगह पर बैठकर डिस्कस करना बहुत एक अच्छा खुशाइन अमल है, क्योंकि एक ही जगह पर आपको जो है ना वो सारे का सारा जो है ना ओवरव्यू मिल जाता है। और इस बजट से हमने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि मतलब किसी चीज़ को प्लस माइनस कैसे करना चाहिए। तो देखें अब बहरहाल क्या बनता है। बहरहाल एक बहुत अच्छा और एक फ्रूटफुल एक्टिविटी थी। फ्रूटफुल एक्टिविटी हुई है और ये सेमिनार होने चाहिए बजट पोस्ट बजट के हवाले से खास तौर पर बात की जाए। हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, क्या कहेंगे आज के इस सेमिनार के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अवेयरनेस सेमिनार था और इसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया कि क्या क्या प्रपोजल आए हैं इनकम टैक्स के हवाले से और सेल्स टैक्स के हवाले से। और इधर जितने भी एक्सपर्ट्स थे, चैम्बर के लोग थे, उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी बजट में लूप होल्स थी उनको डिस्कस किया, क्योंकि कल एक एनॉमली कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि जो जो लूप होल्स हैं उनको कवर किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए बजट से। तो उसकी भी कल को मीटिंग होनी है। वो सारे प्रपोजल जो हैं वो आज की इस सेमिनार के थ्रू उनको भेजे गए। पाकिस्तान टैक्स बार के जनरल सेक्रेटरी चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब इधर मौजूद थे और तमाम जो पैनलिस्ट थे, स्पीकर थे, उन्होंने बजट पे एक सैर हासिल गुफ्तगू की। बजट के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू रही है और डिस्कशन की गई है कि कौन कौन से लूप होल्स हैं उनको किस तरह से कवर किया जा सकता है। आज के सेमिनार में खासतौर पर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन समेत फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नुमाइंदगान मौजूद थे। एक बड़ी जबरदस्त शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान की आमद, बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए फेस्को का अहम फैसला। ऑपरेशन स्टाफ को ईद के 3 दिन मुतहरिक रहने की हिदायत। स्टाफ 3 शिफ्टों में काम करेगा। फेस्को हुकाम के मुताबिक ईद के तीनों रोज बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के हवाले से फेस्को का अहम फैसला, ऑपरेशन स्टाफ को ईद के तीनों रोज़ मुतहरिक रहने की हदायत कर दी और फेस्को ने जो है वो ईद के तीनों रोज़ ड्यूटी करने वाली जो टीमें हैं वो भी तश्कील दे दी हैं। 3 शिफ्टों में फेस्को का ऑपरेशन स्टाफ ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा और इसके साथ साथ फेस्को हेडक्वार्टर में भी ईद के हवाले से खसूसी मॉनिटरिंग सेल जो है वो कायम कर दिया गया है ताकि ईद के तीनों रोज़ कहीं पर भी अगर ट्रांसफार्मर ख़राबी या दीगर मसाइल की वजह से बिजली बंद होती है तो उसको फिलफौर हल जो है वो किया जाएगा। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि ईद के तीनों रोज़ ईद कुर्बान के मौका पर जानवरों की कुर्बानी की जाएगी शहरियों की जानिब से, तो ऐसे में बिजली की बंदिश से जो है वो मसाइल पैदा होंगे। इसी वाले से तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ को जो है वो मुतहरिक कर दिया गया है और ये खसूसी तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि कहीं पर भी अगर ट्रांसफार्मर ख़राबी या दीगर मसाइल पैदा होते हैं उसको फिलफौर दूर करके बिजली बहाली को यकीनी बनाया जाए और ऑपरेशन स्टाफ को भी ईद के रोज़ भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और 3 शिफ्टों में ड्यूटी करेंगे। एसडीओ एक्शन जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर भी एक्टिव रहेंगे और ईद के तीनों रोज़ में ऑपरेशन स्टाफ को ड्यूटी करना होगी ताकि ईद कुर्बान के मौका पर बिजली बंदिश शहरियों की ईद का मज़ा किरकिरा ना करे बल्कि ईद की मौका पर बिजली की बिला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी जो हैं वो आसानी अपनी जो सुन्नत इब्राहिम। अवैस अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जुलहज का चांद नजर आने से कबल फैसलाबाद के शहरियों ने सैलून्स का रुख कर लिया। कोई बालों की कटिंग कराने में मसरूफ और कोई शेव कराने लगा। हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि आज चांद नजर आने का इम्कान है, इसीलिए शहरी कटिंग और शेव कराने आए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज ज़िलुल हज का चांद नज़र आने की काफ़ी उम्मीद है। कल जैसे कि सऊदीया में नज़र आ गया तो आज पाकिस्तान में नज़र आने की भी काफ़ी उम्मीद है। तो शहरियों ने जो है वो चांद नज़र आने से पहले जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ हेयर सलून्स का रुख कर लिया है। शहरी कोई यहाँ पे कटिंग करवाने में मसरूफ़ है तो कोई खत करवाने में, क्योंकि चांद नज़र आने से पहले जितनी जल्दी हो सके जो है वो यहाँ पे शहरी चाह रहे हैं कि हम अपनी कटिंग जो है वो खत वगैरह करवा लें, क्योंकि उसके बाद ये अमल जो है वो कुर्बानी करके उसके बाद ही जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ ये अगर किसी ने कुर्बानी करनी है और अगर नहीं भी करनी, दोनों के लिए जो अमल है काफ़ी अच्छा है। और जो कुर्बानी नहीं कर सकता, जो गरीब जो है वो मुस्तहिक अफराद जो है इतनी नहीं वो रख सकते इस्ताआत के वो कुर्बानी कर सकें, तो उनके लिए भी कुर्बानी जितना सवाब है अगर वो इस अमल पे जो है वो अमल दरामद करें। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा क्या कहती हैं, आज चांद नज़र आने की काफ़ी उम्मीद है, चांद नज़र आने से पहले मतलब ये शहरी यहाँ पे आ रहे हैं कटिंग वगैरह करवाने, उसके बाद जो है वो कुर्बानी के बाद करके आपकी दुकानों का रुख करेंगे। क्या कहते हैं, शहरियों का रश कैसी है और उसके बाद थोड़ा सा आपका भी कुर्बानी ईद के बाद थोड़ा रश पड़ेगा दुकानों में, क्या कहते हैं? जी, जैसे कि आज आपको पता है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ज़ुल्हज का चांद नज़र आने की उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि हमारा 2-3 दिन से काफ़ी रश था, आज भी रश है, लेकिन आज शाम तक रश होगा। उसके बाद फिर अगले जो 10 दिन है ना, वो हमारा काम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। फिर हमारा काम जो है ना, नमाज ईद के बाद लोग कुर्बानी वगैरह करने के बाद फिर है ना दोबारा काम शाम कटिंग वगैरह खत वगैरह कलर वगैरह करवाने आएंगे, तो फिर हमारा दोबारा काम उस दिन से शुरू होगा। बिल्कुल, जैसे कि दुकानदारों का भी यही कहना है कि आज से जो है आज भी काफ़ी रश है शहरियों का, इससे पहले भी जो है 2-3 दिन पहले काफ़ी रश था और आज शाम तक जो है चांद नज़र आने से पहले जो ये रश है ये यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि चांद नज़र आने से पहले तमाम शहरी जो अपने कटिंग और खात वगैरह करवा लेंगे। उसके बाद जो है कुर्बानी करके कुर्बानी के बाद एक बार फिर से शहरियों की जो बड़ी तादाद में जो है वो हमारी दुकानों पर रश लगेगा। इसी वाले से शहरी की जानिब से कटिंग और खात करवाने का अमल जो है हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर का दौरा, लेडी हेल्थ विजिटर्स की प्रमोशन से मुतालिक जारी ट्रेनिंग का जायजा लिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का कहना था 100 से ज्यादा लेडी हेल्थ विजिटर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन और मैनेजर ऑफिसर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा प्रमोशन तरक्की से मुतालिक। आज बिल्कुल महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से, महकमा सेहत इंतजामी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में LHV की प्रमोशन के हवाले से ट्रेनिंग का अमल जारी है। सीईओ फैसलाबाद डॉक्टर असफंदियार ने विजिट किया है और इस सिलसिले जो प्रमोशन ट्रेनिंग यहाँ पे जारी है उसका जायजा लिया है। सीईओ डॉक्टर असफंदियार हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताएं ट्रेनिंग के हवाले से क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर फैसलाबाद में हमारी जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं ज़िला भर से सिलेक्टेड सेंटर से उनको हमने सेलेक्ट किया जिनकी यानी प्रमोशन ड्यू थी
उनको यहाँ पे 2 हफ्तों की एक ट्रेनिंग जो है वो मुकम्मल कॉम्प्रिहेंसिव, ताकि उनकी प्रमोशन का अमल कंप्लीट किया जाए। और ये प्री रिक्विजिट है, मैंडेटरी है किसी भी हेल्थ टेक्नीशियन की प्रमोशन के लिए। तो उस सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ सेंटर्स की LHVs आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रही हैं। इसमें इनको एक तो मुख्तलिफ जो इनके सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह गायनी और ऑप्स है, उसके ऊपर हमारी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर साहबा मौजूद हैं। इसी तरह मैनेजमेंट के हवाले से हमारी जो हैं वो इनकी LHV जो ट्रेनर हैं वो भी इनको देंगी। इसी तरह हमारे जो डायरेक्टर हैं DIDC के, वो इनकी मैनेजमेंट और इनके जो बाकी रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से तमाम चीज़ें इनको बताई जाएंगी, रूटीन EPI का काम भी। और इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग के बाद मैं महसूस करता हूँ कि ये लोग चूँकि पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के इंडिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में पिछले बार से काफ़ी बेहतर हुए हैं और इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। कितनी तादाद है जिला भर में जिनकी ट्रेनिंग का अमल करवा रहे हैं, कोई है फिगर वगैरह? अज़ादार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी है। और जोनल कमेटी कराची के जो अरकान शरीक हुए उनके अस्माए गरामी ये हैं: डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी, मौलाना यासीन ज़फ़र, साहबजादा सैयद हबीबुल्लाह चिश्ती, मुफ्ती फजल जमील रिजवी, मुफ्ती कारी मेहरुल्लाह, मौलाना अब्दुल मालिक बरोही, मुफ्ती अली असगर अत्तारी, मुफ्ती फैसल अहमद, मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी, पीर सैयद शाहिद अली जलानी, मौलाना अशरफ अली, मौलाना असद ज़करिया कासमी, मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद और जो जोनल रोयत हिलाल कराची के लोग आज हमारे साथ शरीक हैं: हाफिज मोहम्मद सलफ़ी, मौलाना मुफ्ती साबिर हुसैन, कारी नज़ीर अहमद नाइमी। और राब्ते के फ़राइज़ वज़ारत मज़हबी अमूर पाकिस्तान से हाफिज अब्दुल कुद्दूस ने, जबकि फ़न्नी मुआवनत के लिए महकमा मौसमियात से चीफ महक डॉक्टर सरदार सरफराज, महकमा स्पार्को से गुलाम मुर्तज़ा, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़ैनुल आबिदीन और पाकिस्तान नेवी से कमांडर साद ने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। इसके अलावा पाकिस्तान भर में जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास उनके मुतल्लिका हेडक्वार्टर मुल्क भर में ज़िलहज का चांद नजर आ गया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।